अमेरिका में राहुल गांधी का चीन को लेकर फिर बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि चीन को कैसे चुनौती दे सकते हैं। राहुल गांधी का बयान, चीन की शक्ति बढ़ रही है, बिना मैन्युफैक्चरिंग के चीन को चुनौती संभव नहीं है। यह राहुल गांधी का बयान अमेरिका में चीन को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि बिना मैन्युफैक्चरिंग के चीन को कैसे चुनौती दे सकते हैं। चीन की शक्ति बढ़ रही है, यह कहना है राहुल गांधी का। The West used to be the producer of the world. If you wanted to buy a car in the 60s, you bought an American car. You wanted to buy a washing machine, you wanted to buy a refrigerator, you bought an American refrigerator. You guys were at the forefront of that, right? And then somewhere along the line, America decided, India decided, and the West decided that we're just going to stop. And we handed the whole thing to the Chinese. For a country like India, to simply say that, look, we are going to ignore manufacturing and we're only going to run a services economy means you can't give employment to your people, right? So one of the things I'm interested in is thinking about the act of production, also called manufacturing. So to me, there's a huge opportunity for India and the United States to regain that ability to produce. Right? The Chinese have placed a production vision on the table. It's a non-democratic production vision. Can the United States and India answer that by placing a vision for production in a democratic, free society? Okay. और राहुल गांधी का चीन को लेकर मोदी सरकार से सवाल भी सामने आया है। चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है, यह अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का कब्जा है, यह राहुल गांधी का बयान है। मोदी चीन को अच्छे से संभाल नहीं रहे हैं, यह बयान भी राहुल गांधी ने चीन में दिया है और कहा है कि चीनी सैनिक हमारी सीमा में बैठे हुए हैं। Troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. एक और बड़ी अपडेट, अमेरिका से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। भारत में न तो मीडिया न जुडिशरी काम कर रही है। भारत के टॉप 200 कॉर्पोरेट्स में ऊंची जाति के सीईओज हैं। 2 लोगों के अनुरूप सारा कुछ है, यह कहना है राहुल गांधी का। 90% of India is either tribal, lower caste, or Dalit, right, or minority, and their participation in the governance of the country, in the various institutions of the country, in the media of the country is lacking. And so what we propose is a survey to make transparent the reality of how power is shared in India. I'll shock you by saying that if you were to look at the top 200 corporates in India, and you were to look at their management teams, and you were to look at their CEOs, you wouldn't find anybody from the lower caste, right? You'd find only people from the upper caste, right? So there is a very small percentage of India which is controlling the entire infrastructure. If you look at the Indian government, 70 secretaries basically determine the direction of it, right? And I made this point again and again in the election that 90% of India doesn't have representation among those people. तो अमेरिका से फिर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हमने एक आक्रामक राजनीति देखी है और आक्रामक राजनीति लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला करती है। एक कठिन लड़ाई, लेकिन एक अच्छी लड़ाई। यह भी कहा उन्होंने, भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ाई चल रही है। हम लड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। I can say to you that Indian democracy for the last 10 years was broken. But it's on an upward trajectory. It's fighting back, but it was broken. I have seen the government of Maharashtra just being taken away from us. So I've seen it with my own eyes. I've watched it as our legislators have been bought and hooked off and suddenly became BJP legislators. So Indian democracy has been under attack, has been very badly weakened, and now it's fighting back. And I'm confident that it will fight back.
अमेरिका में बांग्लादेश पर भी बोले हैं राहुल गांधी। उनका कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच काफी पुराना संबंध है। इंदिरा ने बांग्लादेश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हम किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंता है, ये बात राहुल गांधी ने कही। We have a old relationship with the people of Bangladesh. My grandmother was deeply involved with the creation of Bangladesh. I think there are concerns in India about extremist elements in Bangladesh. I'm confident that things will stabilize in Bangladesh and that we would be able to have a relationship with the current government or any other government after that. We are against any type of violence and we want it to stop. And it's the responsibility, frankly, of the Bangladeshi government to stop it as soon as possible. And from our side, it's the responsibility of our government to put pressure so that that violence stops. एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, अमेरिका से राहुल गांधी का पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, ये बात राहुल गांधी ने अमेरिका में कही है। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाए ये स्वीकार नहीं है, ये भी राहुल ने कहा है। आतंकवाद फैलाएगा तो समस्या बनी रहेगी, राहुल गांधी का बयान अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर। Pakistan's instigation of terrorism in our country is holding the two countries back. We are not going to accept Pakistan carrying out terror acts in our country. We're just not going to accept it. Okay. And until they keep doing that, there's going to be problems between us. बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन को लेकर तो बयान दिया ही, राहुल गांधी ने इजराइल को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। नागरिकों पर बमबारी करना गलत है, महिलाओं और बच्चों को मारना गलत है, किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है और इजराइल को मदद की जगह नुकसान, ये बात राहुल गांधी ने कही। I think what happened on the 7th of October was absolutely wrong, but I also think what Israel did and is doing, bombing innocent civilians, killing women and children, is absolutely wrong and should not be allowed to continue. I am against violence of any kind, and certainly the scale of violence that Israel is deploying, the way it's deploying that violence, I don't agree with. It's harming Israel more than it's helping them. हमने तमाम महत्वपूर्ण बयान राहुल गांधी के दिखाए जो अमेरिका की धरती पर उन्होंने दिए। डर के आगे जीत है, अब सियासत में इस कहावत का मतलब ही बदल गया है। राहुल गांधी के तेवर को देख के लग रहा है कि डर के आगे विपक्ष है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल ने अमेरिका में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिस पर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। I don't know if you've noticed, something has definitely changed after the election results. बिल्कुल, 4 जून 2024 के बाद भारत की सियासत में बहुत कुछ बदल गया है। डर निकल गया, डर नहीं लगता है। संसद के समीकरण बदल गए, विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष मिल गया। 56 inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. और टी शर्ट, जीन्स पैंट में विदेशों की यात्रा करने वाले राहुल गांधी भी बदल गए। अमेरिका की धरती पर हाथ में कलावा, कुर्ता पायजामा और सदरी पहने पहले कभी नहीं दिखे और ना ही पहले कभी इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते नजर आए। बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। पहली बार अमेरिका की धरती से राहुल गांधी पीएम मोदी पर तल्ख हमले कर रहे थे। उनमें अलग ही जोश दिखाई दे रहा था। राहुल भारतीयों के बीच ये संदेश देना चाहते थे कि अब 56 इंच के जुमले का कोई असर नहीं रह गया है। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे, उस डर को पैदा करने में सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म।
और वो दिखता है अब। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर भारतीयों के बीच अक्सर इंग्लिश में बातें करते रहे हैं, लेकिन इस बार इंग्लिश के साथ हिंदी में भी बोलते नजर आए। इसका सीधा सा मतलब था इनकी बात ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचे। 4 जून के बाद राहुल में ये भी एक बड़ा बदलाव है। Media, they don't pick up what we say, and then suddenly we hit upon the idea कि भाई मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ। 4 जून 2024 से पहले राहुल गांधी कांग्रेस नेता के रूप में विदेश यात्राएं करते थे, लेकिन इस बार एजेंडा बदल दिया। अमेरिका में विपक्ष की बात, इंडिया गठबंधन के विजन पर फोकस रखा और बतौर नेता प्रतिपक्ष मोदी सरकार और संघ को घेरने की कोशिश की। राहुल ने भारत को विविधताओं का देश बताया और कहा कि जिस तरह थाली में कई तरह के व्यंजन होते हैं, उसी तरह हमारा भारत है, लेकिन बीजेपी इसे एक रंग में रंगना चाहती है। यहाँ पे अब आप डिनर खाएंगे, यहाँ पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना। पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है, होता है ना। इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स होता है? एक थाली मिलती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। वो कहते हैं नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं, और इन सब में से एक सबसे जरूरी है, एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, बाकी सबका कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन सबसे जोरदार हमला चुनाव आयोग पर किया। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, इसे नियंत्रित किया जाता है। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. अमेरिका की धरती पर राहुल के इस बयान को बीजेपी ने गंभीरता से लिया और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कई नेता मैदान में उतर आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल विदेश में जाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भारत के बाहर जाके भारत को गाली दें। अब तो लगता है कि पाकिस्तान और चाइना को कोई ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिले और जो दुनिया में भारत के विरोधी हैं वैसे टूल किट के बीच जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कई विकास की बातें नहीं करती, दुनिया में जो देश है उनकी तुलना में भारत की क्या प्रगति हो रही है उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बोलते हैं वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाकायदा पीसी करके राहुल को घेरा और सैम पित्रोदा के बयान के सहारे करारा प्रहार किया। ये राहुल गांधी जी ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि उनके जो इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा था कि अभी पप्पू नहीं रहा। अब वो पप्पू रहा नहीं रहा, क्यों उनको ये कैरेक्टराइजेशन दी गई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली। पप्पू है या गप्पू है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज समथिंग लाइक दैट। उनके इंस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट वन नेशन और आइडेंटिटी। वो को जो नॉर्थ से आते हैं वो कहां से आते हैं, वो अफगानिस्तान से आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो चाइनीज होते हैं। ऐसे तो लोगों की कंपनी में ये है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसी ये बातें कर जाते हैं।
हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए उनकी बातों को सही ठहराया। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? राहुल जी ने ठीक ही बात की है। हमारे देश में ये चल रहा है और बीजेपी के लोग ये 10 साल में ये जाति का और धर्म का राजकारण, तुष्टीकरण ज्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात की है लोगों की मन की भावना है। जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा इंडिया गठबंधन के सबसे असरदार हथियार है। इसके जरिए वो बीजेपी को घेरती है, लेकिन मायावती ने अब कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप लगा डाला है। राहुल गांधी के बयान को उछालकर मायावती ने यूपी में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। बात बढ़ी तो कांग्रेस ने कहा कि मायावती की समझ में राहुल की बात नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने भी यही कहा, लेकिन बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अब पूछा जा रहा है कि क्या डर के आगे विपक्ष है या फिर आरक्षण का मुद्दा है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान एक छात्र ने राहुल से आरक्षण को लेकर सवाल कर दिया। छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. राहुल ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जातिगत जनगणना कराने पर भी जोर दिया और कहा कि भारत के 90% ओबीसी, दलित और आदिवासी मुख्य धारा में नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालतों में भारत के 90% लोगों की लगभग कोई भागीदारी नहीं। मीडिया में निचली जातियों, ओबीसी, दलितों की शून्य भागीदारी है। जाति जनगणना होने से उनके बारे में सटीक जानकारी आने का दावा किया। Now, one of the things that I keep saying is that in the 21st century, you need data. And you need to understand the extent of this capture. I think when people actually understand the extent of this capture, they will be shocked, right? And so, for example, the idea of a caste census is a way of shining the light on this capture. राहुल के इसी बयान पर मायावती ने तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने राहुल गांधी पर नाटक करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की साजिश में लगी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ओबीसी, एससी, एसटी को राहुल गांधी से सावधान रहने की अपील की। अरे आरक्षण की जो खत्म करने की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जितनी कार्यविधियां हैं वो सब ये है दलित विरोधी है। दलितों को केवल इन्होंने वोट बैंक समझा, लेकिन दलित आज समझ गया है कि ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी विरोधी रही है। इन्होंने हमेशा दलितों को दरकिनार किया, इसलिए कभी दलित अब इनके उसमें नहीं फंसने वाले हैं। और राहुल गांधी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये तो आपके लिए आरक्षित है, परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और ओबीसी और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? राहुल गांधी अमेरिका में हैं, लेकिन उनके बयानों की वजह से भारत में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। मायावती ने आरक्षण पर घेरा तो बीजेपी के सिख नेताओं ने पगड़ी और कड़े पर दिए बयान को मुद्दा बना दिया। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भड़क गए और कांग्रेस को 1984 की याद दिला दी। I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that.
मैं आपको बताता हूं 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them. बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहां तक कह दिया कि अगर राहुल गांधी भारत में ऐसा बोले होते तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता। ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। और अमेरिका की धरती पे जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, उनसे सपोर्ट चाहते हैं। तेजस्वी के नीतीश के गिड़गिड़ाने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू का तेजस्वी यादव पर पलटवार सामने आ रहा है। सीएम नीतीश गिड़गिड़ाने वाले नेता नहीं है, यह कहना है जेडीयू का। नीतीश ने तेजस्वी और आरजेडी को नया जीवन दिया था। तेजस्वी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, ये बातें जेडीयू ने कही हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं, बैनर पोस्टर पर पाबंदी, भीड़ नहीं जुटाने की हिदायत, हरे गमछे की जगह टोपी और बैज लगाने के निर्देश। बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने निकले तेजस्वी यादव का ये अजब गजब फॉर्मूला भले आपको हैरान कर दे, लेकिन पार्टी इस वक्त अलग मूड में है। जैसे हम लोग को पता है जो गमछा आप रख सकते हैं कन्ना पे, हराना नहीं है, मूड़ी में बांधना नहीं है, तो हम लोग गर्दन पे गमछा रखे हुए हैं, शुरू से रखते हैं तो रखे हुए हैं। गमछा से क्या मैसेज आता है? गमछा जो है ना सर में बांध के आदमी सब थोड़ा, इससे थोड़ा दुष्प्रभाव पड़ता था। तेजस्वी 4 जिलों की यात्रा पर निकल पड़े हैं। 17 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे की शुरुआत समस्तीपुर से हुई। कार्यकर्ताओं से यहां सीधी बात हुई। हरा गमछा काफी सुर्खियों में रहा। नहीं, अब जिसका नजरिया है उस हिसाब से लोग देखता है। क्या चाचा के लिए गेट खुले हुए हैं आरजेडी? उनका हर ये 2-3 महीना पे विश्वास दिलाते रहते कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। विश्वसनीयता जो है मुख्यमंत्री की वो खत्म हो चुकी है। बेटे की यात्रा पर लालू यादव कह रहे कि तेजस्वी पूरा बिहार घूमेंगे, बदलाव लाएंगे, तो जेडीयू कह रही पिछली बार भी 0 मिला, आगे भी वही मिलेगा। यात्रा शुरू हुआ है तेजस्वी यादव, पूरा भ्रमण करना, घूमते रहें, अंत तो गतवा उनको मिलेगा सुन ही। उनका सपना जो है वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रह जाए। इस बीच तेजस्वी के एक बयान पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार थे। अब तो घर आए थे, हाथ हाथ जोड़े मेरी माँ सामने, सब विधायकों के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जो हुआ माफ कर दीजिए, अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। उनका बयान है, मेरे पास वीडियो है भाई उस कार्यक्रम का। लूर लक्षण बदले वाला है सबका, लूर लक्षण बदला नहीं तो सत्ता के पेविलियन पकड़वा दिया। अरे हम जहां हैं सत्ता वहीं है। तेजस्वी यादव जी सच को कबूल करिए। आगे बढ़ते हुए आपको देते हैं एक और बड़ी अपडेट। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की तीसरी सूची में बीजेपी और कांग्रेस के बागियों के नाम हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सतीश यादव और सुनील राव को आपने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल भीम सिंह राठी को टिकट दिया गया है। हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी चौंकाऊ फॉर्मूले पर मैदान में है। इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रणनीति चर्चा में है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, लेकिन सबकी निगाहें 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम पर अटकी। पार्टी ने फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का ऑपरेशन बागी और भी तेज हो गया। आम आदमी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, तो इसमें 2 बीजेपी के बागी और 1 कांग्रेस के बागी नेता के नाम थे। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह आप में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें बरवाला से टिकट दे दिया। अलग अलग पार्टियों को जो सताए हुए, जो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा को भी बदले, परंतु उनको मौका नहीं मिला, तो वो भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि विरोधियों की चुनौती ध्वस्त कर पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से नामांकन किया,
वो ट्रैक्टर चलाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक गए। बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार आ रही, हमने विकास के काम किए हैं, सभी को मना करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया, कोई छोड़ के नहीं जा रहा। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी भले किसी चेहरे पर राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही, सीएम पद के लिए किसी भी फेस को आगे नहीं किया गया है, लेकिन सांसद दीपेंद्र हुड्डा खुलकर पिता को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। झज्जर विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी ने ठाना है, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है। हरियाणा के बाद आइए अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में एनकाउंटर को सियासी संग्राम की धुरी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर मुठभेड़ के मामले को बार बार उछाल रही है। अखिलेश यादव ने जब 6 घंटे के भीतर इस मुद्दे को 2 बार उठाया तो इसके खास मायने निकाले गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में एनकाउंटर पर शुरू हुआ सियासी संग्राम अब आर पार के राउंड में पहुंच चुका है। सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव की पुलिस एनकाउंटर में मौत के मुद्दे को अखिलेश ने फिर तूल दिया। 6 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि एनकाउंटर पर कोई शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाएं। ऐसे लोगों से बस इतना पूछना है कि क्या न्यायालय से किसी की जान भी वापस मिल सकती है। दूसरे पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, भाजपा राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी। अखिलेश के बाद पार्टी की सांसद डिंपल यादव आगे आईं। उन्होंने योगी सरकार पर डबल अटैक किया। एनकाउंटर की जो प्रथा जो ये भाजपा चला रही है, ये कहीं ना कहीं अमानवता की प्रतीक है। इस तरह के एनकाउंटर से या किस तरह का धर्म दिखाना चाहती है पूरे देश पर, किस तरह का संदेश देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जब संविधान को लगातार ये लोग कुचल रहे हैं, जब चुनावों की घोषणा होगी उत्तर प्रदेश में और जब परिणाम आएंगे तो हम देखेंगे नतीजे कि कितने अच्छे नतीजे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के आने। हमारे प्रदेश को आज एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम करे। समाजवादी पार्टी की तरफ से एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं की। अखिलेश यादव तो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, माफियाओं के साथ खड़े हैं और आज ये राजनीति कर रहे हैं। मंगेश यादव ये हमेशा आपराधिक राजनीति करते रहे हैं, जातिवादी राजनीति इनके पिता से लेकर के ये कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या रेल हादसों के पीछे आईएसआईएस का हाथ है? लगातार ट्रैक पर जो सबूत मिल रहे हैं वो साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। कानपुर की पहेली अभी उलझी ही थी कि अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट वाले बोल्डर ने सनसनी फैला दी। शहर 2 लेकिन मॉड्यूल 1, मकसद 1 और तारीख भी 1। 8 सितंबर को कानपुर के पास संदिग्ध विस्फोटक के जरिए ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई और उसी रात यानी 8 सितंबर को ही राजस्थान के अजमेर में सीमेंट के बोल्डर से ट्रेन को पलटने की साजिश का खुलासा हुआ। एबीपी न्यूज पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीर अजमेर की है। ट्रैक पर 70 किलो के सीमेंट के बोल्डर को रखकर मालगाड़ी को पलटने की साजिश रची गई। बताया जा रहा है मालगाड़ी इस सीमेंट को तोड़ते हुए निकल गई। कोई हानि नहीं हुई सबसे बड़ी बात, लेकिन अपने आप में एक बड़ी साजिश, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये यात्री गाड़ियों के गुजरने का भी ट्रैक है, तो एक यात्री गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी संभावना बनी रहती है। लेकिन राजस्थान में 17 दिनों में ये रेलवे ट्रैक पर इस तरीके की 3 घटनाएं सामने आई हैं। रेलवे कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते दिखे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनीष शर्मा ने जांच में जुटे पुलिस अधिकारी से बात की और पूरे मॉड्यूल को समझने की कोशिश की। दोनों घटना स्थलों के बीच 1 किलोमीटर का फर्क है और दोनों घटनाओं के बीच लगभग 1 से 1.5 घंटे का फर्क है। तो इस संबंध में दोनों चीज़ों की हमने इनसे रेलवे अथॉरिटी से करी है पड़ताल। और भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, कोई सीसीटीवी तो यहाँ होने का प्रश्न? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। मालगाड़ी को डिरेल करने के लिए क्या इसमें उनका मोडस ऑपरेंडी रह सकती है,
तो ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पहलू है। फिलहाल ये जो घटना हुई है उस संबंध में हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि ये किसी की साजिश है या फिर शरारत। जांच के लिए SIT का गठन किया गया। साजिश का शक इसलिए क्योंकि दोनों ट्रैक पर बोल्डर रखे गए थे और करीब 1 किलोमीटर तक मालगाड़ी बोल्डर को घसीट कर ले गई। अजमेर में ये घटना 8 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे की है। उसी रात इस घटना से घंटा 2 घंटा पहले कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश थी। सिलेंडर से ट्रैक पर ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई। पास में बारूद, पेट्रोल और माचिस बरामद की गई, जिससे बड़ी साजिश की आशंका को बल मिला। पुलिस सूत्रों की माने तो कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन IS के खुरासान मॉड्यूल पर शुरुआती शक है। इसी वजह से IB, NIA, UP, ATS समेत कई एजेंसियों ने कानपुर में डेरा डाल दिया और साजिश से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मौके पर जाकर आज की जांच की और सबूत जमा किए। जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है। उतने ही गंभीरता से हम लोग इस घटना को लिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, यूपी पुलिस की जो विभिन्न इकाई है, स्पेशल एजेंसीज, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। RPF और RPF के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो भी हमारे साथ है। कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं, बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक IS और ISI के इशारे पर ट्रेनों पर लोन वुल्फ अटैक किया जा रहा है। फिलहाल गहनता से इसकी जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर बहराइच से है। वहां पर भेड़िए ने फिर से हमला किया। 11 साल की लड़की को निशाना बनाया है भेड़िए ने, और घायल हालत में इस बच्ची को मेहसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी अपडेट। भेड़िए का आतंक जारी। बहराइच में 11 साल की बच्ची पर हमला किया भेड़िए ने। हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार वर्मा जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारियां लेकर। अखिलेश, इस बच्ची की स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए, इस बच्ची की स्थिति अभी ठीक है, लेकिन इसको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मासी में भर्ती कराया गया है। और घटनाक्रम की बात करें तो बीती रात में ये सब सो रही थी अपने घर में, तो आदमखोर भेड़िए ने फिर से हमला किया है और इसको घायल किया है। और उसकी भेड़िए की प्रवृत्ति वही रही है हमला करने की, इसके गले पे किया है। और मोस्टली लोग जो घायल हुए हैं भेड़िए के हमले में, तो गले पे ही उसका हमला हुआ है। मैं बता दूं, बहराइच में लगातार हमले जारी हैं और कल जैसा कि वन विभाग ने एक भेड़िए को और पकड़ा था, 5वां भेड़िया कैद हुआ था वन विभाग के पिंजड़े में, लेकिन उसके बावजूद ये हमले जारी हैं। वन विभाग लगातार कह रहा था कि 6 भेड़िए हैं, 5 को पकड़ लिया गया है, 1 बाकी है। लेकिन ABP न्यूज लगातार पहले से भी कह रहा था कि इनका कुनबा जो है वो कुनबा 10 से 12 भेड़ियों का हो सकता है। तो अब ये आशंका और भी प्रबल हो जाती है कि एक भेड़ियों का कुनबा बड़ा है और ये लोकेशन बदल के कर रहे हैं। जहाँ कल भेड़िया 5वां पकड़ा गया था, उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ये हमला जो रात में हुआ है। तो ये इसे और शंका बढ़ जाती है कि भेड़ियों का कुनबा बड़ा है और लोकेशन लगातार बदल के अलग अलग जगहों से ये हमला कर रहे हैं। जी, फिलहाल आपका अखिलेश, और जो आप बता रहे हैं इससे पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। शिमला के संजौली में आज भी प्रदर्शन। मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठन प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन की योजना है आज। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बहुत सख्त। किसी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं है। धारा 163 लागू है।